Assalamu alaikum and very good morning to students. Are you there? DSN? If you are able to hear me, then let me know so that was today, which is carbohydrate metabolism. We have done the first cycle of the carbohydrate metabolism in the last chapter. We have done with the glycolysis, which is very important pathway as far as carbohydrate metabolism is concerned, as far as examination point of view is concerned. So glycolysis is one of the important pathway which we have done, and I want all of you to memorize the lesson topic which we are doing right now, so that the next week we are able to proceed further, because इसमें अगर आप पिछला नहीं करोगे then there is no need to move forward. So let me know if all the students are present, because this is metabolism. We are dealing with the metabolic pathways, so you all have to be present in order to learn. Otherwise, definitely it wouldn't be easy for you. You have done all these pathways, not all these pathways, but few of these pathways in your FSC curriculum, as glycolysis was one of the pathway which was in your biology book, if I remember. Then Krebs cycle was also there. So these are just extensions of those pathways. Maybe in this book they have extended it, or they have elaborated that pathway. Otherwise, the cycles are the same. And in these cycles, you have to recall the names of the enzymes which are used to process these pathways, and this is really mandatory कि इन सब एंजाइम्स के नाम जो है ना वो तुम लोग याद रखो. नो डाउट कि जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, they're very important. The difference of the aerobic and anaerobic glycolysis is also very important, but major thing is the pathway, steps of the pathway, and the reversible and irreversible steps of the carbohydrate metabolism of the glycolysis, and also other pathways कि कौन से reversible हैं कौन से irreversible हैं, because sometimes there is a question that write only the reversible pathways, write only the irreversible pathways. So this is important. So if are you able to hear me? So we have done glycolysis and anaerobic glycolysis in the last lecture. If still you find there is any problem
regarding glycolysis, you are more than welcome. You can ask. Okay, okay, thank you students, थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को कोई मसला अगर ग्लाइकोलिसिस में, तो यू कैन आस्क। ये मैंने कहा था कि जो ग्लाइकोजन वाली कहानी है ना, यहाँ पे दिस ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं भी याद रखते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ग्लूकोज स्टोर हो जाती है ना ग्लाइकोजन में, वो भी इसी पाथवे के थ्रू पहले ग्लूकोज में चेंज होती है और फिर जो है ना पायरुवेट बनाती है। जो के एम वैल्यू है ना, ये तो बेसिकली एंजाइम्स की होती है। के एम वैल्यू एंजाइम्स में हमने पढ़ा है ना, जो माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। तो के एम वैल्यू जो है ना, दिस इज द वैल्यू विच बेसिकली डिफाइंस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम या स्पीड ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो उसके लिए माइकल्स मेंटन ने एक कांस्टेंट दिया था जिसको उसने के एम वैल्यू कहा था और माइकल्स कांस्टेंट भी कहा था। तो ये तो एंजाइम्स का है तुम लोगों का क्वेश्चन ना। अच्छा, ये जो इन पेजेस पे एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, ये तुम सब इससे गो थ्रू कर गए हो, ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को सिर्फ पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन को रट्टा भी लगाना है। The reason behind is when you know the steps of the pathway, so you can write it in your own words. For example, the first step is the conversion of glucose to glucose 6 phosphate, and this step has been catalyzed by the enzyme glucokinase. अगर ये पहला स्टेप पता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो क्या अपने वर्ड्स में तुम लोग नहीं लिख सकते कि द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एटीपी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दिस स्टेप एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड इज ग्लूकोकाइनेज। यही एक्सप्लेनेशन है। अगर तो स्टेप्स आ जाते हैं ड्रॉ करो तो वो तो आप कर लोगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो ये इन सफ़ों को रट्टे लगाने की जरूरत ही मेरा ख्याल है खुद से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि इसमें हो सकता है 2-3 चीज़ें हों कि इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन सा है, ठीक है ना, इस एंजाइम का एक्टिवेटर कौन सा है, इस तरह की चीज़ें कुछ लिखी हों इस वजह से, और कौन सा रेट लिमिटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आई एडवाइस यू कि जी तुम लोगों ने जी ये पढ़ना है, दैट रीज़न बिहाइंड इट। तो एक्सप्लेनेशन तुम लोगों का काम था बेसिकली इसको पढ़ लेना। अब ये सारे स्टेप्स जो हैं दे हैव बीन गिवन, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है, ठीक है, तो पायरुवेट से जब लैक्टेट बनता है, जो NAD जब NADH में चेंज होता है, तो ये हमें 380 नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी चेन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में वर्क नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो लैक्टेट बनता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमें ATPs कम मिलते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। नो कमिंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन, ठीक है, कि एप्लीकेशन जो है क्या है जी इसकी, बल्कि इसमें तो ATPs ही ज़्यादा लिखे होंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे कि कितने ATPs एरोबिक में बनते हैं, कितने एनारोबिक में बनते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ATPs। उसी का इन्होंने लिखा है कि एरोबिक में कितने ATPs बनते हैं, ठीक है, टोटल 10। और अगर नेट का क्वेश्चन आए तो जो 2 एक्टिवेशन में यूज हो रहे हैं वो माइनस करके टोटल 8, और एनारोबिक में जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं वो भी 6 बनते हैं, 2 एक्टिवेशन में यूज हो गए, बाकी नेट कितने ATPs हमें मिले 4। तो ये कैलकुलेशंस हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस एंड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस वजह से उसमें रेस्पिरेटरी चेन भी नहीं होती, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस वजह से रेस्पिरेटरी चेन भी नहीं होती। The end product of glycolysis will always be lactate। जहाँ पे anaerobic glycolysis है वहाँ पे end product क्या है, lactate है। तो इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स में भी जो end product है that is basically lactate। So
In red blood cells, there is an alternative pathway of glycolysis resulting in the formation of 2,3 biphosphoglycerate. जी, जिनको आवाज़ का इशू है वो प्लीज़ रिकनेक्ट कर लें, मैं भी थोड़ी देर में रिकनेक्ट कर लेती हूँ, बट द थिंग इज़ के अगर तो 1-2 स्टूडेंट्स को नहीं आ रही तो फिर तुम लोगों के एंड में मसला है, अगर सबको नहीं आ रही तो फिर डेफिनेटली मेरे एंड में मसला है। तो जी रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास एक एडिशनल पाथवे है, ठीक है, 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जिसमें बनता है, क्योंकि 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा होता है, ठीक है, और फिर 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो रहा होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे से मैं स्टेप तुम लोगों को बता रही हूँ। तो इन सेल्स रेड ब्लड सेल्स एंड अदर देन रेड ब्लड सेल्स 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो डायरेक्टली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या होता है कि 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट पहले चेंज होता है 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, और फिर कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। In red blood cells, due to the alternate pathway, this one ATP at substrate level will not form. बाकी जितने सेल्स हैं ना उनमें इस रिएक्शन में इस स्टेप में एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स में पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिन्होंने दिया भी हुआ है, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स में 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दरमियान में एक प्रोडक्ट बनती है जिसको वो कह रहा है 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये रेड ब्लड सेल्स में बनने का क्या फायदा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। सबसे पहले कि ये जो 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट है ना सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। इट इज नॉट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। इसका फायदा ये हीमोग्लोबिन के, ठीक है, to concentration, its concentration is roughly equal to hemoglobin. When 2,3 biphosphoglycerate binds with the oxyhemoglobin, it decreases its affinity for oxygen. इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन तुम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कैरी करती है, जब ऑक्सीजन कैरी करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड करेगी या 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसकी जो एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की है वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। यानी कि 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट क्या हुआ, उसका इनहिबिटर हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग और हीमोग्लोबिन का क्या होगा, इनहिबिटर होगा, तभी तो उसकी एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है ना। अपॉन ऑक्सीजनेशन 2,3 biphosphoglycerate is released from deoxyhemoglobin. Absence of 2,3 biphosphoglycerate increases the affinity. जब 2,3 biphosphoglycerate नहीं होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जब 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। अब decreased affinity of hemoglobin for oxygen enables the hemoglobin to release the oxygen efficiently at the partial pressure found in tissues. अब जी 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो यही वजह है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यूज में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, ठीक है, कि वहां पे डिटैच कर दे अपने से। हीमोग्लोबिन के साथ ही अगर ऑक्सीजन लगा रहेगा तो टिश्यूज में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। अब क्लिनिकल जी जो बेसिकली डिजीजेज हैं ये हमने लाजमी करनी है। इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में देखो, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस वजह से ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी डिजीजेज आएंगी। ग्लाइकोलाइसिस मेजर एनर्जी सप्लाई करने का पाथवे है, जाहिर है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इसमें चेंजेस या प्रॉब्लम कैसे आ सकती है कि ग्लाइकोलाइसिस का पहला एंजाइम दूसरा एंजाइम पूरे पाथवे में कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएंट है तो इसकी वजह से समझ लो पूरा पाथवे ही डिस्टर्ब हो रहा है। पूरा पाथवे डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब है आपको ये जो 8 एटीपीज मिल रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली बॉडी में डिजीजेज हो सकती हैं, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज की वजह से। ग्लूकोज इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो जाहिर है सेल डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जी पहली डिजीज जो कि ग्लाइकोलाइसिस की वजह से हो रही है
Inherited enzyme deficiency. Most patients with the deficiency of glycolysis enzymes show hemolytic anemia. ऐसे पेशेंट जिनमें ग्लाइकोलिसिस की डेफिशिएंसी ग्लाइकोलिसिस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है उनको हो जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया. एनीमिया तुम सबको पता है क्या होता है. और हीमोलाइटिक का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस हो रही है. अब क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है, अगर कोई एंजाइम डेफिशिएंट है इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी ना. इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एनी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे प्रोसीड नहीं करेगा. अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल्स एंड अदर सेल्स आर नॉट गेटिंग द एनर्जी. तो हीमोलाइटिक एनीमिया होना एक जर्नल जो है ना डिजीज है with the deficiency of any of the enzyme of glycolysis. 90% of the patients show pyruvate kinase deficiency. 4% of the patients show phosphate isomerase deficiency. Pyruvate kinase deficiency से अब क्या हो रहा है, ठीक है. And thus, this is the second most common deficiency after the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, and this is a genetic disorder and it results in the hemolytic anemia. अब याद रखना जी पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी की वजह से hemolytic anemia हो रहा है. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है. समटाइम्स आ सकता है क्वेश्चन. तो बॉक्सेस हमने जो है ना वो लाजमी करते हैं क्लिनिकल जो हमारी डिजीजेस हैं. Rate of the glycolysis is severely decreased. डिक्रीज रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. ये है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी जब होगी तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है. ATPs are inadequate to maintain the structural integrity of the cell membrane. Red blood cells become distorted, which are phagocytized by the cells of the reticuloendothelial system and the spleen, resulting in anemia. के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो जो है जी आपके एक तो उनकी हीमोलाइसिस होना शुरू हो गई है. इसके अलावा जो है बॉडी का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो उनको इनगल्फ कर रहा है, उनको खा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है. सिंस स्प्लीन हैज़ टू रिमूव द ह्यूज नंबर ऑफ डिसऑर्डेड RBCs from the circulation, it enlarges, ठीक है. स्प्लीन ने क्योंकि जितने डिसऑर्डेड जितने हिमोलाइटिक सेल्स हैं उनको डेफिनेटली उनको रिमूव भी करना है तो स्प्लीन का साइज फिर क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, जो कि एक और डिजीज़ है. अगर आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन का साइज इनलार्ज हो जाएगा तो दिस इज अदर डिजीज़, ठीक है. तो एनीवेज वी शुड नो कि इसके अब जो है ना वो इसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है. लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले तो एनीमिया का टेस्ट तुम लोग करवा सकते हो, ठीक है. इसके अलावा जो स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो आप लोग चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जो है जी प्रोकैरियोट्स और रेटिकुलोसाइट्स इनको चेक कर सकते हैं. ब्लड में पायरुवेट काइनेज के लेवल कम हो जाएंगे, सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा. ये अब इसमें देखो पायरुवेट की डेफिशिएंसी के बारे में 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है. या ऐसे आ सकता है कि कोई भी डिजीज़ आप बता दो जो ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम रिलेटेड डेफिशिएंसी की वजह से हो सके, ठीक है. तो इसको आई विल एडवाइस के बॉक्सेस तुम लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है. तो हम इसमें जो है जी इसका ट्रीटमेंट वगैरह तुम लोग और जो भी है इसके फीचर्स वो याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है. एरिथ्रॉइड हाइपरप्लास्टिया ऑफ बोन मैरो, ट्रीटमेंट इसका जी क्या है, स्प्लेनेक्टोमी फॉर स्वेयर सिम्टम्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जाहिर है अगर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और क्योंकि स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो गया था तो स्प्लीन की रिमूवल जो है इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, ठीक है. तो दीज आर द 2 ट्रीटमेंट्स बेसिकली. इसके अलावा जी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, अगर तो एल्डोलेज जो एंजाइम है एल्डोलेज, ठीक है, अगर डिफिशिएंसी हो तो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है.
fructose 1 phosphate accumulates in the cells, hence decreases the availability of phosphate. ठीक है, अगर एल्डोलेस की डेफिशिएंसी है तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज नहीं होगा। तो उसका उसके रीजन से क्या होगा, अगर चेंजिंग नहीं हो रही तो जो फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को जो है सेल्स को टिश्यूज को फॉस्फेट नहीं मिल रहा। फॉस्फेट इज एसेंशियल फॉर बोथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस शुगर का बनना और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ग्लाइकोजिन का ब्रेक होना। ठीक है, इन दो स्टेप्स में फिर फॉस्फेट नहीं मिलेगा। Since the phosphate stores are depleted due to abnormal accumulation of fructose 1 phosphate, both pathways will block. अगर फॉस्फेट के स्टोर खत्म हो रहे हैं क्योंकि फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में फ्रक्टोज के साथ अटैच हुआ हुआ है फॉस्फेट, ठीक है, और आगे चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि बॉडी में जिन पाथवेज के लिए फॉस्फेट चाहिए है वो उनको नहीं मिल रहा। ठीक है, जिन पाथवेज के लिए फॉस्फेट चाहिए है वो उनको नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये पाथवेज आपके बॉडी में बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे ब्लॉक हो रहा है इसका मतलब बॉडी में नया ग्लूकोज नहीं बन रहा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का ब्लॉक हो रहा है इसका मतलब है जरूरत के टाइम पे तुम लोगों को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, क्योंकि ग्लाइकोजिन ब्रेक होगी तो क्या मिलेगा, अगर ग्लाइकोजिन ब्रेक होगी तो फिर तुम लोग को मिलना तो ग्लूकोज ही है ना, अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, अंडर द फास्टिंग। तो इस वजह से दोनों पाथवेज बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जी सिम्टम्स क्या हैं, जॉन्डस, वॉमिटिंग, स्वेयर, हाइपोग्लिसीमिया, ग्लाइसीमिया, इसके अलावा सरोसिस, हैमरेज, ये सारे सिम्टम्स हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस ऑफ फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, कि फ्रक्टोज बॉडी में पहले इतना जमा हो रहा है तो हम इन हालात में हमने फ्रक्टोज नहीं लेना। ठीक है, और सक्रोज भी नहीं लेना, क्योंकि सक्रोज भी अगर तुम चीनी भी खाओगे तो उसने ब्रेक किस में होना है, तो उसने ब्रेक होना है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में। ठीक है, तो हमने फ्रक्टोज रिलेटेड चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अकोमुलेशन ऑफ फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट इन आवर बॉडी। दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में अकोमुलेट कर रही हैं, एक फ्रक्टोज और एक फॉस्फेट। ठीक है, और दोनों चीज़ें फिर हमने डाइट से क्या कर देनी है, डिक्रीज। अच्छा, लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि हम सबको पता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट से लैक्टेट बनता है। ठीक है, एलिवेटेड लेवल ऑफ लैक्टेट इन प्लाज्मा इज नोन एज लैक्टिक एसिडोसिस। अगर प्लाज्मा में लैक्टेट के लेवल्स हाई हो गए हैं तो इस डिजीज को हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिडोसिस। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ऑक्सीजन इज it occurs in situations where oxygen supply to the tissues becomes deficient. For example, in circulatory collapses, pulmonary, and also hemorrhages. अच्छा जी, लैक्टिक एसिडोसिस जो है, दिस इज अ डेंजरस डिजीज, लैक्टेट एक्युमुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है जिगरी सप्लाई relation resulting in decreased ATP production. ऑक्सीजन नहीं होगा, रिकमेंड कि हमें करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज अ लिटिल बिट फास्ट। तो डिजीजेस तुम लोग ये खुद भी पढ़ सकते हो, सिम्टम्स इसमें क्या हो रहे हैं, या वॉमिटिंग, ठीक है, पेन, हाइपर वेंटिलेशन, और डायग्नोसिस क्या है कि हाई लेवल्स ऑफ लैक्टेट इन द प्लाज्मा एंड
absence of anemia. This is a diagnosis and treatment is a correction of the cause. देखो जितनी भी डिजीजेस जो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं, ये नॉर्मली होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती, बट इन पाकिस्तान दीज आर क्वाइट रेयर। ये जो डिजीजेस हैं पाकिस्तान में काफ़ी रेयर हैं, ठीक है। इनकी जो एबनॉर्मेलिटी है एंजाइम्स रिलेटेड, ठीक है, इस वजह से जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है कि जेनेटिक थेरेपी इज़ द रीज़न कि जो इसको क्योर कर सकती हैं, जीन थेरेपी, ठीक है, कि हम अपनी मर्ज़ी का एंजाइम जो है वो बॉडी में इंसर्ट कर दें जीन थेरेपी के थ्रू। फिर ये एक रीज़न है कि ये जो है वो बेहतर हो सकता है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट फिर क्या कहाँ जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट। अब पायरुवेट का फेट क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूटिलाइज हो सकता है पायरुवेट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये बेसिकली यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, किसको आवाज़ का प्रॉब्लम है जी अब? फेट ऑफ द पायरुवेट के पायरुवेट अब ग्लाइकोलिसिस में तो बन गया, लेकिन आगे किधर जाएगा? Pyruvate is the end product of the glycolysis and it produces many important substrates for different metabolic pathways, ठीक है। पायरुवेट एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल। सबसे पहले तो ये जो पायरुवेट है जो ग्लाइकोलिसिस के एंड में बनना है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो सकता है, ठीक है। अब सिर्फ इनके नाम याद रखने मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी हैं, बाकी तुम लोग इस डिटेल में ना भी जाओ तो खैर है, ठीक है। हमने सिर्फ पाथवेज करने हैं। पायरुवेट जो है वो एसिटिक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, ठीक है। ये हमने जब हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे वहाँ भी हमने पढ़ना है कि पायरुवेट फर्स्ट चेंजेस इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। नीचे इक्वेशन भी दी हुई है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है जो कि इसको एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर रहा है और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्रैब साइकिल में एंटर हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, बाकी चीज़ें लिखी हुई है कि इस एंजाइम को, इस पाथवे को कैटलाइज कौन कौन से एंजाइम्स कर रहे हैं। को एंजाइम्स NAD है, NADH है, ठीक है, ये सारे को एंजाइम्स हैं जी। आवाज़ का इशू है, सबको है, ठीक है। आई विल रिकनेक्ट इफ देयर इज एनी इशू, एनी वॉइस रिलेटेड इशू, ठीक है, तो आई कैन रिकनेक्ट, आई कैन रिकनेक्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। लेट मी रिकनेक्ट। जी सबको है तो मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है, मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ। Or not, I have reconnected. I've reconnected. जी कोई वॉइस का इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? Is it better now? Is it better? Are you able to listen? Voice is better or not? प्लीज़ लेट मी नो अगर आवाज़ का इशू रिजॉल्व हो गया है।
अगर इशू रिजॉल्व हो गया है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। इशू हैज़ बिन रिजॉल्व और नॉट। जी अभी भी काट रही है। गिव मी 2-3 minutes, आई विल रिजॉल्व इट। जी प्लीज गाइड इफ इट इज बेटर। Hello class. Hello class. Are you able to listen me? Are you able to hear me? आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं? It is due to some times the internet connection problems. जी अभी भी है तो दोबारा रिकनेक्ट। ओके ओके, आ रही है आवाज तो that's okay. That's okay. That's okay. If you are able to listen me, that is okay. अच्छा जी, पायरुवेट ने किधर किधर जाना है मैंने कहा सिर्फ इसका ओवरव्यू करना है, ठीक है। कि पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंटर हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का यानी कि सबस्ट्रेट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर होके ग्लूकोज की सिंथेसिस करा रहा है। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल तुम लोगों ने याद नहीं करनी, ठीक है। पायरुवेट मैलिक एसिड बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है जी वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड बना रहा है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। एंजाइम्स जो जो हैं जिस जिस पाथवे से ये बन रहा है, ठीक है। हमने सिर्फ तुम लोगों ने नाम याद रखना है कि पायरुवेट का फेट क्या है, पायरुवेट किधर किधर जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि जी पायरुवेट का फेट क्या है, ठीक है। इसके अलावा पायरुवेट जो है वो लैक्टेट भी बना रहा है, ठीक है। और पायरुवेट इन बैक्टीरिया फॉर्म्स अल्कोहल, बैक्टीरिया में पायरुवेट जो है वो अल्कोहल भी बना रहा है, एथनॉल भी बना रहा है। तो सिर्फ इसका ओवरव्यू याद रखना है तुम लोगों ने, हमने इसकी डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, जस्ट आ ओवरव्यू। पायरुवेट का फेट क्या क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो रहा है, क्रैप साइकिल में एंटर हो रहा है, बैक्टीरिया में अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। लैक्टेट बना रहा है, मैलिक एसिड बना रहा है। तो ये सिर्फ हमने नाम की हद तक वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो बेसिकली जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो रिकनेक्ट करें, मैंने भी रिकनेक्ट किया, ठीक है। क्रैप साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रैप साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बो ऑक्सलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रैप साइकिल इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ द मेन और सेंट्रल साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन का मेन पाथवे है। इसके अलावा प्रोटीन्स के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और लिपिड्स के लिए भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये मेन एक पाथवे है। इट इज़ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। अब देखो एम्फीबॉलिक का मतलब मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि एनाबॉलिक भी हो रही हैं चीज़ें इसमें और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, दोनों चीज़ें पाथवे में होगी। इसको हम कहेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका फ़ायदा ये है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाथवे हो रहा है और इसका फ़ायदा ये है कि इस पाथवे में कोई एटीपी यूज़ नहीं होता इसको स्टार्ट करने के। तो दैट इज़ द बेनिफिट कि इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रहा, ओके।
Cycle starts with acetyl coenzyme A and oxaloacetate. पायरुवेट की एक फेट ये भी थी ना पायरुवेट की के पायरुवेट चेंज हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिटेट में और तो फिर जेनेसिस से बनेगा चेंज हो जाएगा acetyl coenzyme पायरुवेट अच्छा हो सकता है पायरुवेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में ठीक है जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और फिर चेंज होता है फिर होता है और इस में 3 NADH 1 FADH और 1 GTP बेसिकली सिग्निफिकेंट जी तो क्लास आई हैव रिकनेक्टेड आवाज ये मेरी आई friends who here are you able to hear अब आ रही है मेरी आवाज ओके ओके आ रही है लेकिन कट के
भी कट रही है, अभी भी कट के आ रही है आवाज तुम लोगों को। जी तो आवाज वो सर की क्लास थी। अच्छा, कल मेरी जगह पर कौन से टीचर ने क्लास लिया था? कौन से टीचर ने मेरी जगह कल क्लास ली थी? This is because of, I think, the signal problems. I have reconnected. Signals भी यहाँ पे सही आ रहे हैं, but I don't know. I have tried कि आवाज सही आए तुम लोगों को। अच्छा, सही 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 सही, ठीक 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 ठीक। ओके, दैट्स गुड। कल तुम लोग चलो, क्योंकि पहले इन्फॉर्म कर दिया था इन लोगों को, इस वजह से चलो तुम लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। एनीवेज, हमने करना है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, ठीक है? ओके 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 ओके, अगर आप क्लियर है तो चलो लेट्स स्टार्ट फाइनली। देखो, हर साइकिल की सिग्निफिकेंस लाजमी करनी है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो क्रैब साइकिल है, ठीक है? तो जी, क्रैब साइकिल की सिग्निफिकेंस, जो क्रैब साइकिल के नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ना, सारी इसकी सिग्निफिकेंस है कि एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, कोई एटीपी इसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है? एक एसिटाइल कोएंजाइम से हमें 12 एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है? ये याद रखो कि 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के ग्लाइकोलाइसिस के बाद। वो दोनों एंटर होंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में, लेकिन पहले वो चेंज हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो कितने मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बने? 2, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल्स बने एसिटाइल कोएंजाइम ए के एंटर होने के लिए क्रैब साइकिल में पायरुवेट से। एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल 12 एटीपी दे रहा है, तो 2 कितने देंगे? 24, ठीक है? 2 देंगे 24। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए एक तो पायरुवेट से बन रहा है, और किस चीज से बन रहा है? फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है? जब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है? जब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब क्रैब साइकिल तुम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, और ये अब उसके स्टेप्स, ठीक है? साइकिल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द बेसिकली कोएंजाइम में की ये एबिलिटी है कि ये क्रैब साइकिल में एंटर हो रहा है। और क्रैब साइकिल कहाँ पे हो रहा है इसका पाथवे? सेल में। दिस इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? क्रैब साइकिल का प्रोसेस हो रहा है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो पहले से मौजूद जो सेल में ऑक्सैलो एसीटेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो बना देगा ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन एंड दे फॉर्म सिट्रेट, ठीक है? जो एंजाइम इनको चेंज करेगा वो है सिट्रेट सिंथेज। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। साइकिल तो बहुत ईजी है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ये तो रट्टा है साइकिल को जो तुम लोगों ने लगाना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंजाइम कौन सा है और कहाँ कहाँ पे एनएडी बन रहा है, कहाँ कहाँ पे एटीपी बन रहा है। याद रखने वाली चीज़ तो बेसिकली ये है, ठीक है? तो जी, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ए सिट्रेट, ठीक है? सिट्रेट अब जो है अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है? आइसोसिट्रेट जो है दैट इज गोइंग टू चेंज इन अल्फा कीटो ग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे एनएडी से एनएडीएच
बन रहा है, इसका मतलब एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि एनएडी जब एनएडीएच में चेंज हो जाएगा तो हमें कितने एटीपी मिलेंगे, 3 एटीपीज हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है। एंजाइम नाम तुम लोगों ने याद रखना है, साथ साथ अल्फा कीटाग्लूटारेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स इज द एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 एटीपी मिल रहे हैं क्योंकि एनएडी इज गोइंग टू चेंज इनटू एनएडीएच। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज चेंजिंग इनटू सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे जीटीपी से जीटीपी बन रहा है, और जब जीटीपी से जीटीपी बनता है तो इसको भी हम एक एटीपी कंसिडर करते हैं। दिस इज सेम एज लाइक एडीपी से एटीपी बन रहा है। ठीक है, जीटीपी जीटीपी का से एटीपी बनता है। ठीक है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज इसमें एंजाइम है। अब सक्सिनिक एसिड चेंज हो रहा है फॉर्मिक एसिड में, यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे हैं क्योंकि जब एफएडी से एफएडीएच बनता है तो 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, अब जी फ्यूमेरिक एसिड इज चेंजिंग इनटू मैलिक एसिड, and finally with the help of malate dehydrogenase malic acid is changing into oxaloacetate। ठीक है, और यहाँ पे भी एनएडी से एनएडीएच बन रहा है तो 3 एटीपी बन रहे हैं। अब ये डायलेमा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ कि पहले ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा, ऑक्सैलोएसीटेट पहले से ही बना हुआ है, वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ साइकिल दैट हैज टू बी कंटिन्यूड। ये साइकिल है और कंटिन्यूज है। ठीक है, तो अच्छा जी, लुबना जीडीपी और जीटीपी भी उसी तरह से है। गोनोसिन डाइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर जरा तैयार कर लो। ठीक है, वहां पे गोनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है ना। ठीक है, तो जीडीपी और जो जीटीपी है दैट आर द सेम लाइक एडीपी एंड एटीपी। अच्छा, तुम लोग एफएससी की बुक से कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन एंजाइम्स के नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए। साइकिल तो वही है। ठीक है, साइकिल तो वही है, तुम लोगों को एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। एंजाइम्स के नाम तुम लोगों को जो है ना वो याद होने चाहिए, जहाँ पे एटीपी बन रहा है वो याद होना चाहिए, बाकी साइकिल तो वो एफएससी वाला ही है। ठीक है क्लास, कर सकते हो तुम लोग, लेकिन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, लेकिन एंजाइम्स के नाम याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि एंजाइम्स की एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन नाम तो याद होने चाहिए ना कि कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसमें साइकिल को देखो कि 3 हमें एटीपी, अच्छा जो ऊपर एटीपी बन रहा है ना पायरुवेट से, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा वो हमने नहीं गिनना, क्योंकि जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है तो ये साइकिल से बाहर की कहानी है। ठीक है, साइकिल स्टार्ट ही तब हो रहा है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हो रहा है। ठीक है, तो जब पायरुवेट चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में तो ये दैट इज आउट ऑफ द बेसिकली क्रैप साइकिल। अब कितने एटीपीज बन रहे हैं, हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड इन क्रैप साइकिल। ठीक है, कितने एटीपीज बन रहे हैं ये तुम लोगों ने आप गिन के मुझे बताना है। जी, कितने एटीपीज बन रहे हैं क्रैप साइकिल में, सब गिनो और सब बताओ कितने बन रहे हैं क्रैप साइकिल में एटीपी।
दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स है ना, तो क्रैब साइकिल में टोटल फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 और दो से 24, देर आर टू बेसिकली पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, तो इस वजह से टोटल जो है ना वो 24 बनेंगे। ठीक है, बनेंगे 24 बिकॉज आर देर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, टोटल 24 बनेंगे और इसमें यूज कोई नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें यूज कोई नहीं हो रहा एटीपी। ठीक है, 3 NADH से, 3 NADH से 6, 2 FAD से 6 और 2 8, एक GTP से 9 और फिर 3 NAD से 12 टोटल बन रहे हैं। लेकिन जो है वो क्योंकि दो हमारे पास हैं उसके मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के। ठीक है, तो दोनों एंटर होंगे, दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होंगे, दोनों एंटर होंगे, तो इसका मतलब है टोटल 24 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इस पाथवे में। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ये है कि यूज कोई भी नहीं हो रहा। और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम वाला मैंने तुम लोग को कहा कि वो हमने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये पाथवे इजी सा है, हमने देखो स्ट्रक्चर नहीं करने, सिर्फ अपने नाम ही तो याद रखना है कि सिंपली ऑक्सैलो एसीटेट्स और एसिटाइल कोएंजाइम ए ने सिट्रेट बना दिया, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड फॉर्मिक में, फॉर्मिक मैलिक में, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, तो ये जी हमारा है जी क्रैब साइकिल। अब देखो इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन अगर अगर कभी ये सवाल आ जाए कि रोशना कंवल हम 24 ही लिखेंगे टोटल जो बन रहे हैं, वो तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से है ना, तो दोनों इसमें एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ ये अलहदा करके लिख सकते हो मैंने एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूसेस 12 ATP, तो टोटल लेकिन जो बन रही हैं वो 24 हैं बिकॉज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। एक से 12। Simply you can write one acetyl coenzyme A produces 12 as there are two acetyl coenzyme A entering in the Krebs cycle, so total 24। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है जी वो हमने पर एसिटाइल कोएंजाइम में तुम लोग लिख सकते हो कि नेट एटीपी फॉर्म्ड पर 12 पर क्रैब साइकिल इज 12। ठीक है, तो सिंपली you can simply write 12 ATPs are produced per acetyl coenzyme A. Is it okay now? Is it okay now? ठीक है, तो एक जो है कोएंजाइम की वजह से हमें कितने एटीपीज मिल रहे हैं, हमें 12। जी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेक के बाद बाकी ये करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, लेकिन हमने जो है ना वो ये नहीं करनी, हम जेनेसिस का पाथवे सिलेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भाई पायरुवेट साइकिल में एंटर होने से पहले जो है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, पहले वो चेंज होता है। पायरुवेट कैन नॉट एंटर द साइकिल। ठीक है, पायरुवेट कैन नॉट एंटर Krebs cycle। ठीक है, फर्स्ट इट हैज टू चेंज इनटू
ठीक है, फर्स्ट इट हैज़ टू चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। So that is it, that ATP is outside. So that ATP formed is outside the cycle, ठीक है, इसलिए हम वो काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन कि हम वो एटीपी जो है वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो एटीपी हम काउंट नहीं करेंगे। ओके। अच्छा जी, ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह 10:10 पे वापस आते हैं, ठीक है, 10:10 पे। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। ओके।
Class, we are back. BSN, we are back. Are you there? Class, are you there? We are back finally. Are you able to listen? Okay, Lubna Batul, thank you. जी, क्रैप साइकिल के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीसीए साइकिल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीसीए साइकिल को अफेक्ट कर रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. Which factors are affecting the TCA cycle? Citrate synthase, dehydrogenase, alpha ketoglutarate. These are the enzymes basically ना, जो की enzymes हैं जिनकी absence में ज़ाहिर है TCA cycle affect हो जाएगा. ठीक है. ADP adaptability, increase in ADP accelerate the rate of reaction to produce the NADH, where it provides the ATP through the respiratory chain. ठीक है. डिक्रीज होगी ATP, तो इसका मतलब है ATP जब डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि एटीपी बनेगी हमारी बॉडी में. ठीक है. क्योंकि जो है एडीपी और फॉस्फेट कंबाइन करके ही तो एटीपी बना रहे हैं. ठीक है. एडीपी वैसे अवेलेबिलिटी का तुम लोगों ने नहीं करना जो है वो है अब ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली. ठीक है. ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब ये वाला जो साइकिल है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस को अगर तुम लोग उल्टा करके पढ़ लो तो ये सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है. If you are doing glycolysis, then there is no extra need, no special need to do the gluconeogenesis. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस का ही ऑपोजिट है ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? द सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. के ये नहीं है कि तुम लोगों ने उससे सुक्रोज से ग्लूकोज बना दिया या हम लोगों ने लैक्टोज से ग्लूकोज बना दिया. ठीक है. दैट इज नॉट ग्लूकोनेजेनेसिस. ग्लूकोनेजेनेसिस का मतलब तो ये है कि आप लोगों ने प्रोटीन से ग्लूकोज बनाया है, आपने फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाया. ठीक है. आपने लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाया, यानी कि अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सोर्स इफ वी आर प्रिपेयरिंग द ग्लूकोज, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. न्यू ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट, लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, कीटो एसिड. ठीक है. अमाइनो एसिड से अगर हम बना रहे हैं, लिपिड से अगर हम बना रहे हैं, तो दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फास्टिंग आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स आफ्टर 10 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग. जब 10 से 18 घंटे तुम लोग नहीं कुछ खाते ना, तो फिर हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे स्टार्ट हो जाता है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. या ऐसा हो जाए कि ऑलरेडी ग्लाइकोजन के भी स्टोर्स खत्म हो रहे हैं, तो फिर अमाइनो एसिड या फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना दें, लैक्टिक एसिड. ठीक है. तो ये जो है हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज बनाते हैं या पायरुवेट. दीज आर द बेसिकली सिंथेज एंजाइम, द सिट्रेट सिंथेज, सिंटीथेज नहीं है, सिंथेज है ये. ठीक है. दिस इज सिंथेज. अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जब फास्टिंग होगी तब हमारी बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट होगा ताकि ग्लूकोज मिल सके. ठीक है. फर्स्ट फ्यू रिएक्शंस इन द फॉर्मेशन ऑफ acetoacetate occur in the mitochondria, and later on reactions starting from till the synthesis of the glucose occur in the cytosol. कुछ रिएक्शन इसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कुछ इसके साइटोसोल में हो रहे हैं. लिवर इज द मेन रीजन जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का 90% प्रोसेस हो रहा है. लिवर में 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. एंड किडनीज आर कैरिंग आउट द रिमेनिंग 10% ऑफ ग्लूकोनेजेनेसिस. बाकी 10% हो रहा है किडनीज में. ठीक है. स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स कैन नॉट स्टार्ट ग्लूकोनेजेनेसिस. ये जो मसल्स हैं ये ग्लूकोनेजेनेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकते. अच्छा, ये सेपरेट से करने की जरूरत है.
ठीक है। या इसका सारा जो पाथवे है ये बहुत ही वैसे काम आता है, लेकिन मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ये ग्लाइकोलिसिस को अगर तुम लोग उल्टा करना शुरू कर दो, ग्लाइकोलिसिस को ये नहीं कि एंड से, ग्लाइकोलिसिस का एंड ये देखो, ग्लूकोनेजेनेसिस वाला जो पेज है, अगर किसी के पास किताब है तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है पायरुवेट। शुरू में देखो मैलिक एसिड लिखा है, उसके नीचे ऑक्सैलो एसीटेट लिखा है, उसके नीचे फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तुम लोग आ जाओ जरा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसा ही है। फिर बन रहा है G3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बन रहा है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट के बाद बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज। ठीक है, ये अगर जो पाथवेज मैंने तुम लोग से भी पढ़े हैं, ये मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। यानी कि मैंने ग्लाइकोलिसिस के जो पाथवेज हैं बेसिकली वो स्टार्ट किए। ग्लाइकोलिसिस को तुम लोग उल्टा कर दो तो वो सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है। उसमें ग्लूकोज ऊपर है सबसे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, इसमें सबसे एंड पे है, क्योंकि ग्लूकोनोजेनेसिस में ग्लूकोज बननी है और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ने, तुम लोग ग्लाइकोलिसिस का ही पाथवे उल्टा कर लेते हो तो वो सारा ग्लूकोनोजेनेसिस है, अलहदा से इसको करने की जरूरत है ही नहीं, उसी को उल्टा करो। सिर्फ देखो याद रखो कि ये स्टेप्स मैंने जो है ना उल्टे लिख रहे हैं बस, और सिर्फ 2 स्टेप्स बल्कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ऊपर जो ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल और पायरुवेट बन रहा है, और ऑक्सैलो एसीटेट से पहले मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से जो है ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है। जो डब्बा बनाया हुआ है ना बॉक्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, वो सारे लिखे हुए हैं सोर्सेज कौन कौन से यूज हो सकते हैं कि जिनसे ग्लूकोज बन सके। मैलिक एसिड, पायरुवेट, लैक्टेट, एलानिन, ठीक है, दे आर ओनली द सोर्सेज गिवन विच कैन बेसिकली फॉर्म द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। ठीक, सिर्फ तो ये जो है दिस इज ऑपोजिट टू ग्लाइकोलिसिस। इज इट क्लियर कि उसको उल्टा करोगे ये बन जाएगा, कोई कोई जरूरत नहीं है कि इसको तुम लोग सेपरेट करो। ग्लूकोनेजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सारा ग्लाइकोलिसिस का ही पाथवे है, तुम लोग को समझ आ रही है स्टूडेंट्स मैं क्या कह रही हूँ, सारा ग्लाइकोलिसिस का ही पाथवे है। सिर्फ फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो तीसरे नंबर पे है उसके ऊपर एक स्टेप तुम लोगों ने याद रखना है, ऑक्सैलो एसीटेट, और साथ ऊपर मैलिक एसिड। बस यहाँ लिख सकते हो कि मैलिक एसिड के साथ देर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो, लैक्टिक एसिड, एलानिन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पायरुवेट लिख सकते हो, डब्बा भी चाहे ना बनाओ, बॉक्स बनाने की ऐसा जरूरत भी कोई नहीं है, ठीक है, बॉक्स बनाने की भी जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। और सिर्फ मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो, 2 फॉस्फो, 1,3 बाईफॉस्फो, ये सारी वही चीजें हैं, ऑल द थिंग्स सेम दैट हैपेंस इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ओनली दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्स, मैं लिख भी देती हूँ। तो इसका मतलब है दोनों पाथवे कर सकते हो। ग्लाइकोलिसिस तो याद करना ही करना है लाजमी, ग्लाइकोलिसिस को उल्टा कर दोगे तो ग्लूकोनेजेनेसिस बन जाएगा, नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफिकल्ट आल्सो, ठीक है। इज इट क्लियर? ओनली रिवर्स हमने इसको करना है, अगर आप उसको रिवर्स कर दो तो दैट इज जेनेसिस, ठीक है। नथिंग इट्स सेपरेट इज रिक्वायर्ड, ओनली रिवर्स, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ ये याद रख लेना एंजाइम्स के नाम
कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, एंजाइम्स वही नहीं हो सकते, ठीक है। Enzymes can be different, otherwise this is the reverse. Okay, enzymes can be different, otherwise this is only the reverse. Both the cycle are reverse of each other, ठीक है। अब इसके वजह से ग्लूकोनेयोजेनेसिस जो है ना, हमने ऐसा सच नहीं करना, लेकिन ये है कि सिर्फ उसका रिवर्स है। अब ये देखो एक चीज लिखी हुई है कि द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज प्रेजेंट ओनली इन द लिवर एंड द किडनी बट नॉट इन द मसल्स, therefore muscles cannot form the glucose from the glucose 6 phosphate। अच्छा, जो ग्लूकोनेजेनेसिस का प्रोसेस है ना, मसल्स में नहीं हो रहा, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो मसल्स की जो शुगर होगी या मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है ना, उसका कोई रोल नहीं होता कि वो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में एनर्जी दे सके, ठीक है। तो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है ना, तो मसल्स की जो ग्लूकोज है उसका कोई वो हमें एनर्जी दे सके। दैट इज क्लियर कि मसल्स ग्लाइकोजन डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल because the enzyme glucose 6 phosphatase is present only in liver and kidneys but not in the muscle। so जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये दोनों पैराग्राफ जो हैं ये हमने करने हैं। the enzyme glucose 6 phosphatase is present only in liver and kidneys but not in the muscles, ठीक है। तो मसल्स की जो ग्लाइकोजन है उसका कोई रोल नहीं है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। अब ग्लूकोनेजेनेसिस का पाथवे कौन सी चीज मेंटेन कर रही है, तो जी कौन से हार्मोन्स हैं, तो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है ये क्या करेगा, ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ग्लूकागॉन हमारी बॉडी की शुगर लेवल को इंक्रीज कराता है। कैसे, ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। हमारी ग्लाइकोजन भी होती है हमारी बॉडी में, उसको ये कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये रेगुलेट कैसे करता है, ग्लूकागॉन एक्ट्स ओनली ऑन लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एंड इनहिबिट्स द फॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम, ठीक है। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस वाला एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देता है ग्लूकागॉन। ग्लाइकोलिसिस का जो एंजाइम है उसको ग्लूकागॉन इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ना हो, ग्लूकोज पायरुवेट ना बनाए, ठीक है, बल्कि ग्लूकोज जो है हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करे, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैम्प एंड कैम्प डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कॉजिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज, ठीक है। वो सारे एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस करवा रहे हैं उनको इनएक्टिवेट कर देगा ताकि ग्लूकोज के लेवल बॉडी में, ज़ाहिर ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो रही है, तो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। ग्लूकागॉन का काम सिंपल ये है कि उसने बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाना है, तो इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, ताकि ग्लाइकोलिसिस ना हो और बॉडी की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दे। सिंपली is the regulation of the gluconeogenesis by the glucagon। Glucocorticoids cortisol cause the increase in glucose, fatty acids and amino acids in peripheral tissues, they decrease the utilization of glucose। जाहिर है ये जो रेगुलेशन वाले एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे, जैसे कि कॉर्टिसोल है, जैसे कि ग्लूकागॉन है, इनका काम ये है कि इन्होंने बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज होने से रोकना है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। और जो बॉडी में यूटिलाइजेशन हो रही है ग्लूकोज की उसको भी कॉर्टिसोल रोक देगा कि सेल्स अप एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन्स को यूज करें, ठीक है ना, सेल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लिपिड्स को यूज करें, दे इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है ताकि बॉडी को एनर्जी प्रोटीन से मिले और ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा रहे हमारी बॉडी में, ठीक है। of the glycogenic effects in the liver are caused by the glycerol and amino acids mobilized from the peripheral tissues। Glucocorticoid increase the key enzymes in the regulation of gluconeogenesis, that is pyruvate, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कॉर्टिसोल्स हैं वो जो ग्लूकोनेोजेनेसिस के रेगुलेशन के एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज करता है,
ठीक है। सिंपली ये है कि ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये दोनों जो हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करवा रहे हैं और ग्लाइकोलिसिस को रोक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस अगर होगा तो अवेलेबल ग्लूकोज तो सारा पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? Availability of the substrate gluconeogenesis precursors markedly influence the rate of the gluconeogenesis. Lack of the insulin causes the mobilization of the triacylglycerols from the adipose tissues and amino acids from the muscle proteins, which provide the substrate for gluconeogenesis. अच्छा जी, जो ग्लूकोजेनिक प्रोसेस हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैलिक एसिड है, जैसे कि पायरोवेट है, ठीक है, ये ग्लूकोनेोजेनेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो प्रिकर्सर्स हैं, जो सबस्ट्रेट हैं। अगर सवाल आ जाए कि व्हाट आर द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनेोजेनेसिस, कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं ग्लूकोनेोजेनेसिस के, किन चीजों से ग्लूकोज बनता है? जी बिल्कुल इनफ है, लेकिन ये तो बताओ कि किन किन चीजों से बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं इसके? ठीक है जी, तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर इंसुलिन नहीं होगी तो फिर फैट्स और जो अमीनो एसिड्स है ना वो भी एज अ सबस्ट्रेट बनेंगे, किसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन तो ग्लाइकोलिसिस करवाना है ना, इंसुलिन ने तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं ना करवाना। इंसुलिन का तो काम ये है कि उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करना है, ठीक है। इंसुलिन ने तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करवाना है। इज इट ओके? इंसुलिन का काम ये है, इंसुलिन समझ लो ग्लूकोनियोजेनेसिस का इनहिबिटर है, ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक्टिवेटर है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो एक्टिवेटर है और ग्लूकागॉन इनहिबिटर है। जी बस इतना ही कर रहे हैं हम आज इंशाल्लाह, ठीक है। अगर तुम लोगों को कोई मसला है तो यू कैन सिंपली आस्क बिकॉज वी हैव द टाइम। You have the time, ठीक है। तो रेगुलेशन तक तुम लोगों ने पढ़कर आना है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म रह गया अभी, और इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, ग्लाइकोजिन का बनना और ग्लाइकोजिन का ब्रेक होना, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के चैप्टर्स थोड़े से लंबे हैं बट वी हैव द टाइम, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ही बस रह गया, ठीक है। इसके बाद एचएमपी शंट है, एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, और जो कोडीज लैक्टिक एसिड साइकिल है दैट इज क्वाइट स्मॉल, ठीक है, दैट इज क्वाइट स्मॉल। तो जी जो ग्लाइकोजिन का है उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक तो ग्लाइकोजेनेसिस और एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिन का ब्रेक करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म। बाकी लोग जो है जी ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनेजेनेसिस में डिफरेंस भी लिखा है, भी तुम लोग कल पढ़कर आना, बल्कि नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो वेडनेसडे को वी हैव द क्लास, कोई न्यूट्रिशन का जो चैप्टर रह गए हैं वो हम कर लेंगे, और थर्सडे को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ही इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब तुम लोग का टेस्ट जो है वो अगले मंगल है कि आज भी कोई टेस्ट है? इज देयर एनी टेस्ट टुडे ऑफ बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन? इज देयर एनी टेस्ट और नॉट? कोई टेस्ट है आज के? नहीं।
ओके गर्ल्स, ओके ओके ओके, थैंक यू। इसका मतलब है अब हमारे पास ट्यूसडे को टेस्ट है। अच्छा, ऐसा है कि मैं ट्यूसडे तक कोशिश करूंगी तुम लोगों को ऐड कर लूं, बिकॉज ऐड करना इज़ नॉट इजी। हर एक बच्चे का, तुम लोग जितने स्टूडेंट्स हो सबका ईमेल एड्रेस मुझे लेके तो फिर उनको बारी बारी टर्न बाय टर्न ऐड करना पड़ता है। ये भी नहीं कि एक बच्चे को कर लें, तो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है कि हम बायोकेमिस्ट्री पे ही सारे टेस्ट लेते जाएं। या ठीक है, चलो, आई विल ऐड यू टू द न्यूट्रिशन एज वेल। जब मैं, मेरा तो ये ख्याल था कि जब एक सब्जेक्ट में ऐड कर लिया मैंने बच्चों को, तो वो ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे न्यूट्रिशन में भी। ये मुझे नहीं पता था कि उसमें सेपरेट हमने ऐड करना है न्यूट्रिशन में। तो चलो, लेट्स सी, इंशाल्लाह जो है ना वो, फिर मैं न्यूट्रिशन का ही तुम लोगों का टेस्ट है लिपिड्स वाला ना, मैं फिर ट्राई करती हूँ कि तुम लोगों को मैं न्यूट्रिशन में ही ऐड कर लूँ। क्योंकि अभी तो वो शालीमार लर्निंग पोर्टल चलेगा मेरे ख्याल में, अभी तो कोई ऐसी होप्स नहीं है कि कॉलेज तुम लोगों का स्टार्ट हो जाए ना। तो हम जो है वो लिपिड्स वाला टेस्ट ही तुम लोग दोगे, न्यूट्रिशन के पोर्टल पे आके दे देना, ठीक है। लिपिड्स वाला टेस्ट ही तुम लोग दोगे, कोई सेपरेट अभी बायोकेम का अगर एक ही हफ्ते में एक ही टेस्ट है, तो पहले हम ये जो शुरू किया है लिपिड्स वाला टेस्ट यही हम करेंगे, ठीक है। तो लिपिड वाला टेस्ट ही तुम लोग जो है दोगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर हम लिपिड्स का रख लेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी तुम लोग जो है ना वो लिवर वाला टेस्ट, सॉरी लिपिड्स वाला नहीं, लिवर वाला टेस्ट तुम लोग दोगे इस अब जो रिएक्शन है। कमिंग ट्यूसडे को तुम लोगों का है जी लिवर डिजीज फुल चैप्टर, ठीक है। ये मैं लिख भी रही हूँ, बाकी क्लास जो भी ऑनलाइन नहीं है तो उनको भी तुम लोग बता दो, ठीक है। कमिंग ट्यूसडे लिवर डिजीजेस फुल चैप्टर, ठीक है। लिवर डिजीजेस फुल चैप्टर। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो अब ये फुल चैप्टर का ही टेस्ट होगा तुम लोगों का, ओके। फुल चैप्टर का ही टेस्ट होगा। फिर इसके बाद जो ट्यूसडे आएगा ना उसमें हम लिपिड्स का रख लेंगे, यानी कि वीक में हमारा एक टेस्ट होना है ना, तो ठीक है। चलो लिपिड्स का देख लें पहले, ये मंगल को ये वाला टेस्ट तो दो ना लिपिड्स का, वी विल सी। बट ट्यूसडे को तुम लोग पहले ये वाला टेस्ट दो, ठीक है। तो पहले ये वाला टेस्ट दो, फिर वी विल सी। अगर तुम लोग चाहते हो कि कमिंग ट्यूसडे हम लिपिड्स का लिपिड के, इट्स ओके, फिर हम कमिंग ट्यूसडे स्केड्यूल के मुताबिक ही चलते हैं, फिर हम कमिंग ट्यूसडे लिपिड्स का ही टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। इट्स ओके, कमिंग ट्यूसडे लिपिड्स, ओके, मूव विद स्केड्यूल। अगर ऐसा है मसला तो फिर हम कमिंग ट्यूसडे लिपिड्स का ही टेस्ट दे देते हैं। तो इट्स बेटर कि तुम लोग फुल चैप्टर ही दे दो, फुल चैप्टर ही दे दो, मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। कंप्यूटर का टेस्ट दे, तो अब हफ्ता है, टाइम इतना लो अभी, तो मंगल को लिपिड है, बस डन हो गया, इजी टेस्ट होगा, डन फुल चैप्टर, ठीक है। तैयार करके आओ बस, दिस इज डन के ट्यूसडे वी हैव द फुल चैप्टर ऑफ द लिपिड्स टेस्ट। बहुत दिन है, दोनों वीकेंड भी है, आजकल आना भी नहीं पड़ता कॉलेज, इतना टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। तो कमिंग ट्यूसडे जो है जी वो लिपिड्स का ही फुल चैप्टर हम टेस्ट कर रहे हैं। लिपिड्स फुल चैप्टर टेस्ट कमिंग ट्यूसडे, लिपिड्स टेस्ट। You should tell everyone about the test. You should tell everyone about the test. It will happen on coming Tuesday. हम schedule के साथ ही move करते हैं, ठीक है।
So we are moving with the schedule. Class is clear? Is it clear? Is it clear? यार एक ही बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैंने कह दिया कि बस कमिंग ट्यूसडे लिपिड्स का फुल चैप्टर का टेस्ट है, बस 3 से 4 है ना टाइमिंग्स। टेस्ट के टाइमिंग्स क्या हैं? 3 से 4। तो 3 से 4 बस हम लिपिड्स का टेस्ट करेंगे कमिंग ट्यूसडे, ठीक है? बाकी तुम लोग जो है अभी लिपिड्स का टेस्ट दो, साथ साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला है ये भी करो, ठीक है? इससे ना तुम लोग तैयारी हो जाएगी ना। इस तरह तुम लोग हाफ हाफ चैप्टर का करके फिर हम क्या करेंगे? भी हमने न्यूक्लिक एसिड्स का नहीं दिया, एंजाइम्स का नहीं दिया, हार्मोन्स का नहीं दिया, तो वी हैव मैनी टेस्ट पेंडिंग। तो ये है कि तैयारी का तरीका ये है कि तुम लोग टेस्ट दो बस। दिस इज डन दैट कमिंग ट्यूसडे वी आर हैविंग द टेस्ट ऑफ लिपिड्स। जो तुम लोग इसमें से पूछना चाहते हो पूछ लो, अभी हमारे पास टाइम है। और कोरोना की क्या सूरत हाल जा रही है तुम लोग के इर्द गिर्द? क्या सिचुएशन चल रही है तुम लोग के घरों में, फैमिलीज में? सब सेफ हैं? क्या सिचुएशन है कोरोना की? बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ना। हमें छोटे शहरों में इतना ज़्यादा नहीं है जितना लाहौर में है। अल्लाह सबको महफूज ही रखे कोरोना से। सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है वो उसको प्रॉपरली जो है अपनाओ, और आई होप कि सब ठीक हों, क्योंकि सूरत हाल जो है ना वो ख़राब ही है पाकिस्तान में। सो वी वांट के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स सब लोग यूज़ कर रहे हैं। जिनकी फैमिलीज नहीं करी, बीइंग अ नर्सेस तुम लोगों का तो रोल है सबको गाइड करना, सबको बताना कि हमने बचना कैसे है कोरोना से। हाँ हाँ, लाहौर में तो बहुत ही ख़राब है हालात, बहुत डर लगता है बाहर निकलते हुए। लाहौर में तो कोई हालात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लाहौर में। जी हेलो। हेलो क्लास। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, सो फाइनली 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 वाइंडिंग अप द टुडेज लेक्चर, ठीक है? किया तो बस आज क्रैप साइकिल ही हमने, ठीक है? और ग्लूकोनोजेनेसिस मैंने तुम लोग को बता दिया, दैट इज ऑपोजिट, ठीक है? तो इसको जब पढ़ोगे, जो अगर चीज़ नहीं समझ आएगी कि ऑपोजिट प्रैक्टिस करो कि अगर आज तो हमने ऑपोजिट कैसे लिखना है, ठीक है? रजिस्टर पे, आम पेजिस पे, ठीक है? तो तुम लोग ये असाइनमेंट है कि एक रजिस्टर पे सफ़ा लेके तो एक तरफ ग्लाइकोलाइसिस लिखो, एक तरफ ग्लूकोनोजेनेसिस लिखो, ताकि तुम पता चले। और देखो कि कहाँ कहाँ एंजाइम्स का फ़र्क है, क्योंकि एंजाइम्स इसके जो है ना डिफरेंट होंगे, एंजाइम सेम नहीं हो सकते ग्लाइकोलाइसिस के और ग्लूकोनियोजेनेसिस के, ठीक है? तो एंजाइम्स विल करना ग्लाइकोलाइसिस वाले, तो एंजाइम्स इसके डिफरेंट होंगे। ज़ाहिर है जो एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा ग्लूकोज भी बनाए। समझ आ गई मेरी बात? तो एंजाइम्स विल बी डिफरेंट एंजाइम्स
कि ग्लाइकोजन के तुम लोगों के लिए भी जरा आसानी रह सके ना, क्योंकि अभी तो चीज़ें तो बड़ी अनसर्टन हैं। बट ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बाद तुम लोगों का जो है ना वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रह गया, फैट मेटाबॉलिज्म रह गया। ठीक है, और तो ये एक दो चैप्टर्स ही हैं, या फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो है, अल्केन्स अल्काइंस वाला ना, वो वाला रह गया हुआ है। तो इस वजह से कोर्स का इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई नहीं है। और ये देख लो कि किसी की नेक्स्ट ईयर में प्रमोट जो हो रहे हैं बच्चे, वो मतलब कि वो नहीं हो रहा, तुम लोग के टेस्ट वो एग्जामिनेशन के बगैर तुम लोग को प्रमोट नहीं किया जाना। इसलिए इस टाइम में प्लीज ये मत सोचना कि पता नहीं हालात कैसे होने हैं, तो हम पता नहीं एग्जाम्स भी फाइनल होने हैं कि नहीं। तो 2021 में तुम लोग के एग्जाम लाजमी होने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 21 जो है दैट इज द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इंशाल्लाह होपफुली जो है ना, हम इस साल ही है कोरोना वायरस या जितना भी ये है, तो 2021 के इंशाल्लाह आते ही थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर। तो अभी जो टाइम है उसको यूज करो, कि अभी रिलैक्स होकर बैठे रहो कि क्या होना क्या नहीं होना, हम ऐसे ही पढ़ते रहें। कहानी नहीं है ऐसा कोई, एग्जाम के होने हैं। तो दैट्स एडवाइस यू कि ये जो टाइम है ना, इस पे तुम लोग जो है वो अपनी स्टडी जारी रखो। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह जो भी है तुम लोग टीचर्स लेती हैं, वो उस पर प्रेजेंट वगैरह शुरू कर दो। ठीक है, दे विल आस्क यू फॉर द अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ हो गई है कि अभी होनी है अटेंडेंस? ताकि जो है ना हम लोग जो है वो इसको वाइंड अप करें। फिर तुम लोग खैर नेक्स्ट क्लास भी होगी, तुम लोगों ने तो अभी इधर ही रहना है। 11 से आगे भी तुम लोगों की ऑनवर्ड भी क्लास है। विच क्लास ऑनवर्ड फ्रॉम 11 to 12? अब देखो इतनी गर्मी में तुम लोग को कॉलेज नहीं आना पड़ता, कितना सुकून है। बिकॉज टेम्परेचर इज गेटिंग टू हाई टेम्परेचर इज गेटिंग टू हाई। बहुत गर्मी है, और दिस इज अ ब्लेसिंग कि घर बैठ के तुम लोग आराम से सुन रहे हो। ये भी तुम लोगों के लिए ब्लेसिंग है। अगर फिर भी नहीं पढ़ रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, जिनको हॉस्टल से आना पड़ता था वो तो चलो ठीक था, बट जिनको ट्रैवल करना पड़ता था दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। तो वो मसला तुम लोगों का हल हो गया है। हाँ जी, अपनी प्रेजेंट वगैरह अपनी सारी अटेंडेंस वगैरह कर लो, और नेक्स्ट टाइम जो है विल स्टार्ट विद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जितना भी अभी तक हमने किया है वो करो, और मंगल को हमारा टेस्ट भी। ठीक है, तो ट्यूसडे वी विल गिव द टेस्ट एंड वेडनेसडे वी विल हैव द क्लास। ठीक है, तो मेरी तरफ से जी खुदा हाफिज है। तुम लोग अपना वेट करने का फ्रॉम जो है दैट इज। और कोई क्वेश्चंस हो तो तुम लोग एनी टाइम यू कैन आस्क। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस तभी पर आएंगे ना जब लेक्चर तैयार करोगे। लेक्चर ही नहीं पढ़ोगे जब ये ग्लूकोकोर्टिकाइड क्या होते हैं, ग्लूकागोन क्या होता है, ठीक है, रेगुलेशन कैसे कराता है, तब तक कोई फायदा नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स भी मैं देख रही हूँ काफी कम है आज ऑनलाइन। ठीक है, वाई? देर आर ओनली 16 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नाउ। सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? देर आर ओनली 16 स्टूडेंट्स विच आर प्रेजेंट नाउ ना, तो फ्रॉम मी आई एम साइनिंग ऑफ। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कीप योर अटेंडेंस। ठीक है, कि कम से कम ज्यादा बच्चे। ओके 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 ओके।